So today we are going to see the non-deterministic PDA. It is non-deterministic push-down automata. In previous lecture we saw the deterministic PDA examples, right? So there are two types of PDA, deterministic and non-deterministic. So here the non-deterministic provides the non-determinism to the PDA. In what is the difference between DPDA and NPDA? As like our finite deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. Deterministic PDA में क्या होता है? For one input only one transition is possible from one state, and in non-deterministic from one state for one input more than one transition is possible. Okay, so that's why the DPDA is less powerful than the NPDA. So every context-free language cannot be recognized by the DPDA, but it can be recognized by the NPDA. As an example, जैसे रेस्ट टू पावर है, जहाँ पे भी स्टोरेज की ज़रूरत है वो DPDA से हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. क्लियर? So the class of language a DPDA can accept lies in between regular language and context-free language. जैसे यूजिंग DPDA हम लोग पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते हैं जहाँ पे फिक्स नहीं है कि वो कौन से इसमें है, तो NPDA से वो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अ पैलिंड्रोम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द NPDA बट इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द DPDA. ओके, सो नाउ वी सी वन एग्जाम्पल that is of palindrome itself, right? So इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है पावरफुलनेस के ऊपर, थ्योरी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स कि DPDA इज़ लेस पावरफुल दैन NPDA जस्टिफाई करने के लिए. एक तो ऐसे पूछा जाता है, नहीं तो ये पूछा जाता है कि DPDA इज़ which PDA is more powerful, right? So NPDA or DPDA. So you have to give this explanation. Clear? Now next, the example, design a PDA for detection of odd palindrome. As we already saw कि NPDA is used for only palindromes, right? So there are two types of palindromes, odd palindrome and even palindrome. So first of all, what is palindrome? कि अगर हम लोग कोई स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं तो वो स्ट्रिंग अगर स्टार्टिंग से रीड करते हैं या फिर एंडिंग से रीड करते हैं तो सेम स्ट्रिंग रीड कर होती है, दैट इज़ एन पैलिंड्रोम, राइट? सो ऑड पैलिंड्रोम कैसे होगा फिर? सो ऑड पैलिंड्रोम में क्या होगा? एक तो स्ट्रिंग होगी, बीच में ए या बी सिंबल होगा, right? And it is ended with the reverse of that string. For example, AB अगर W की वैल्यू अगर AB ली हमने तो क्या होगा? ABA, right? So this is the form of odd palindrome. ठीक है. Now अभी ये जो बीच वाला कैरेक्टर है, ये मिडल कैरेक्टर, दिस इज़, ये अभी कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? सो देयर इज़ नो वे फॉर फाइंडिंग दिस मिडल कैरेक्टर, right? So by the PDA. So therefore this middle character is fixed non-deterministically. Clear? So non-deterministically इसे कैसे फिक्स किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर वो फर्स्ट n कैरेक्टर्स है तो हम लोग क्या करेंगे? पुश करेंगे स्टैक में, whereas n is non-deterministic. ठीक है. सेकेंड ये स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे for calculation of odd palindrome transitions. Okay, so the n characters are on the stack are matched with the last n character. First जो भी ओमेगा की W की वैल्यू है वो पुश की जाएगी, और सेकेंड इसमें क्या हो जाएगा? अगर वो बिलोंग्स टू सेकेंड हाफ है तो वो मैच किए जाएंगे फर्स्ट हाफ से, राइट? Now this n is decided non-deterministic, right? So every character of first n character should be considered for 2 cases. क्यों 2 cases के लिए? क्योंकि स्टार्टिंग में भी ए बी है, मिडल कैरेक्टर भी ए बी है और लास्ट में भी ए बी का ही कॉम्बिनेशन है. तो ये मिडल कैरेक्टर जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट? अगर
अगर फर्स्ट ए हम लोग कंसीडर करते हैं तो वी हैव टू कंसीडर इट फॉर 2 केसेस. इज इट अ मिडल कैरेक्टर और नॉट. मिडल कैरेक्टर नहीं है मीन्स व्हाट फर्स्ट हाफ में है. फर्स्ट हाफ में है तो हमें क्या करना होगा, पुश करना होगा, राइट. अगर मिडल कैरेक्टर है तो नो ऑपरेशन करेंगे एंड सेकेंड हाफ में जाएंगे और सेकेंड हाफ में क्या करेंगे, मैचिंग परफॉर्म करेंगे एंड पॉप करेंगे. क्लियर. सो देयरफॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट एन कैरेक्टर should be considered for 2 cases. First case is that it is not the middle character. अगर ये middle character नहीं है तो push the current character. So irrespective of the top of the stack element, irrespective of top of the stack element हम लोग क्या करेंगे, जैसे ट्रांजिशन हम लोग परफॉर्म करते हैं Q0 इनिशियल स्टेट, A इनपुट लिया, irrespective of this टॉप ऑफ स्टैक एलिमेंट हम लोग उसे क्या करेंगे, पुश करेंगे. सो Q0A सेम Q0B इप्सिलॉन इज इक्वल्स टू Q0B. क्लियर. अगर वो मिडल कैरेक्टर है तो क्या करेंगे, नो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो गो फॉर मैचिंग सेकेंड हाफ. तो नो ऑपरेशन मीन्स व्हाट, Q0 सेम. अगर टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट कि अगर वो मिडल कैरेक्टर है तो नो ऑपरेशन करेंगे. सो Q1 इप्सिलॉन मीन्स ये इप्सिलॉन एज इट इज़ यहाँ पे जाएगा, राइट. जो भी एलिमेंट होगा यहाँ का वो यहाँ पे जाएगा, राइट. सेम Q0B इप्सिलॉन इज इक्वल्स टू Q1 इप्सिलॉन. एज ऑपरेशन गेट चेंज स्टेट्स गेट चेंज, राइट. सो अब ये हो गया. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नो ऑपरेशन का परफॉर्म हो गया तो उसके बाद जो भी कैरेक्टर आएगा वो किसके लिए जाएगा, मैचिंग के लिए जाएगा, राइट. सो फॉर एग्जांपल Q0AA आता है तो वो मैच हो जाएगा. तो हम लोग किस पे जाएंगे, Q2 इप्सिलॉन. नाउ Q2 पे क्यों जाएंगे, बिकॉज ऑपरेशन चेंज पॉप कर रहे हैं ना हम लोग. सो ऑपरेशन चेंज स्टेट चेंज. सेम Q1B इप्सिलॉन इज इक्वल्स टू Q2 इप्सिलॉन. नाउ Q2 पे उसका लूप लगाना होगा. सो Q2AA इज इक्वल्स टू Q2 इप्सिलॉन, Q2BB इज इक्वल्स टू Q2 इप्सिलॉन एंड दिस इज द एक्सेप्टेंस. सो Q2 इप्सिलॉन Z0 इज इक्वल्स टू Q2 इप्सिलॉन. दिस इज एक्सेप्टेंस थ्रू एम्प्टी स्टैक. क्लियर. तो वही ट्रांजिशन फंक्शन फिर से यहाँ पे लिखे हैं. सो द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर PDA. सो Q0A इप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, अभी 2 ट्रांजिशन है हमारे पास. अगर मिडल कैरेक्टर नहीं है तो ये पुश होगा, अगर मिडल कैरेक्टर है तो नो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट. सेम फॉर दिस. नाउ अभी Q1AA आया है तो क्या होगा, दिस इज फॉर दिस 4 इज फॉर पॉप ऑपरेशन, राइट, मैचिंग परफॉर्म करने के लिए. एंड दिस इज फॉर एक्सेप्टेंस. क्लियर. सो वेयर द सेट ऑफ स्टेट्स Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, कितने स्टेट्स से, 3 स्टेट्स. इनपुट अल्फ़ाबेट AB, टॉ सिंबल that is AB Z0 and starting state Q0 initial stack symbol is equals to Z0. So like this way we have to find out the transition for odd palindrome. Now how to show the string acceptance for such type of cases. So see here, यहाँ पे हम लोग अगर कंसिडर करते हैं फॉर स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस ABA तो इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, तो यूजिंग स्टैक के थ्रू यहाँ पे शो किया है. तो जैसे इनिशियली स्टैक में Z0 है, इट विल बी कंसिडर फॉर 2 केसेस कि जैसे फर्स्ट A आया तो इट विल बी गो फॉर 2 केसेस. कौन से 2 केसेस है, एक तो नो ऑपरेशन के लिए या फिर पुश के लिए, ठीक है. नो ऑपरेशन में क्या होगा, Z0 एज इट इज़, पुश में ये पुश हो जाएगा. क्लियर. सेकेंड B आया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये फिर से 2 केसेस के लिए जाएगा, दैट इज़ नो ऑपरेशन एंड पुश ऑपरेशन. फिर से एक A आया. नाउ सी हियर, यहाँ पे ये AA मैच होगा और Z0 रहेगा, लेकिन अभी तक हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हुई क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पे फेल लिखा है. क्लियर. नाउ ये फिर से 2 केसेस के लिए जाएगा, नो ऑपरेशन एंड पुश ऑपरेशन. सो नो ऑपरेशन में क्या रहेगा, या एज इट इज़ रहेगा और पुश में ये A पुश हो जाएगा, राइट. नाउ फिर से B इनपुट लेके हम लोग फिर से मैचिंग परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे ये BB मैच होके क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा और क्या बचेगा, AZ0, और ये फिर से 2 केसेस के लिए जाएगा. क्लियर. एक तो पुश के लिए, एक नो ऑपरेशन सेम एंड एक
पुश के लिए। फिर से ए आया तो ये ए मैच होके पॉप हो जाएगा और Z0 बचेगा, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ये भी ए मैच होके पॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फेल हो जाएगी, और ये फिर से 2 केसेस के लिए जाएगा। क्लियर? सो लाइक दिस वे, यूजिंग द स्टैक ऑपरेशन, वी हैव टू शो द स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस फॉर ऑड पैलिंड्रोम।